Good morning, friends. Welcome to my YouTube channel, Kamni Zubot Classes. In this Kamni Zubot Classes, today's my topic is heart. Today, I will explain the structure of heart as well as the double circulation. So, let's start the topic. Our heart is basically situated between the lungs inside the thoracic cavity. Our heart is also enclosed inside the double membranous bag-like structure, and these structures are, see, the outer layer is called parietal pericardium, inner layer is called visceral pericardium, and the space between these two layers is called as the pericardial cavity. This pericardial cavity is filled with pericardial fluid. ये जो फ्लूइड है बेसिकली ये हमारे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, ये हमारे हार्ट को मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करता है, और जो हमारे हार्ट के अंदर रिदमिकली मूवमेंट होता है टिक टिक का, और हार्ट का जो रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको स्मूथली रन करता है. तो दिस इज बेसिकली द इम्पोर्टेंस ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड. After that, our human heart is divided into 4 chambers: right auricle, left auricle, right ventricle, and the left ventricle. Both right and left auricle is also separated with the help of interauricular septum, and both right ventricle and left ventricle is also separated with the help of interventricular septum. So this is interventricular septum. Clear? Two vena cava, superior vena cava and the inferior vena cava are opened inside the right auricle, and a coronary sinus is also opened inside the right auricle. आप ये दो नॉचेस देख रहे हैं, इधर मैंने बनाए हुए हैं. बिलो द सुपीरियर वेना केवा अ नॉच इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड एज द assay node. Assay node means sino-auricular node. This assay node is also called as a pacemaker. The main important function of this node is to generate the impulses. जब ये इम्पल्सेस जनरेट होती हैं बोथ ऑरिकल्स में, तब हमारा हार्ट सिस्टोल करता है. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? आफ्टर दैट एक और नॉच यहाँ पे आप देखेंगे, दैट इज कॉल्ड एवी नोड, ऑरिकुलोवेंट्रिकुलर नोड. दैट एवी नोड कलेक्ट ऑल द इम्पल्सेस विच इज जनरेटेड बाय द एसे नोड एंड सप्लाइड टू द बंडल ऑफ हिस. इस बंडल ऑफ हिस को सप्लाई करती है जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में सिचुएटेड है. ये बंडल ऑफ हिस बेसिकली फाइब्रस स्ट्रक्चर होता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है. दिख रहे हैं आप, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं हमको, रेड कलर के मैंने यहाँ बनाए हैं. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ बंडल ऑफ हिस इज बेसिकली joined over the last end part of the ventricular, and through this fiber like structure Purkinje fibers are produced and they are embedded inside the left and right ventricle. 2 semilunar valves are also present over here. The right semilunar valve, here it is the right semilunar valve, it opens into the aorta, and the left semilunar valve, it opens into the left pulmonary artery. Left and right 2 pulmonary arteries are present over here. Pulmonary means lungs, तो lungs की तरफ जो artery जा रही है that is called as the pulmonary artery. And after that, lungs is present in between left pulmonary artery and the left pulmonary veins, and that left pulmonary veins, two left pulmonary veins are open inside the left auricle. Basically two left pulmonary veins are situated at the left auricle, and 2 right pulmonary veins are situated at the right auricle. So both are opened inside the left auricle. तो कितनी pulmonary vein हो गई हमारे यहाँ पे? 4. तो all 4 pulmonary veins are opened inside the left auricle. Last part of the heart is called as the apex. That apex is basically situated over the diaphragm. इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो समझने वाली हैं. लाइक आर्टरी, नॉर्मली आर्टरीज के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वेन्स के पास हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होता है. सिस्टोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट, डायस्टोल मीन्स रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट, एंड पल्मोनरी मीन्स लंग्स. आई विल क्लियर वन डाउट बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड द पल्मोनरी वेन्स. Pulmonary artery means to collect deoxygenated blood from the right ventricle, and pulmonary veins means collect oxygenated blood from the left ventricle. So this is all about the structure of the heart. Already we have learnt about the structure of heart. Now start our double circulation. ये देखिए हार्ट का स्ट्रक्चर ये डिफरेंट है उस स्ट्रक्चर से. सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, कोरोनरी साइनस का मेन वर्क होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरी बॉडी से कलेक्ट करना एंड पोर्ड इनसाइड द राइट ऑरिकल.
और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्ड करेगा लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स एंड राइट पल्मोनरी वेन्स। जैसे ही दोनों ऑरिकल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्ड होगा, ऑटोमेटिकली ऐसे नोड, ये देखिए ऐसे नोड है, इट स्टार्ट जनरेटिंग इम्पल्सेस। तो इम्पल्स जनरेट हो जाएंगे और जो ऑरिकल्स का प्रेशर है वो भी हाई हो जाएगा इन कंपैरिजन टू द वेंट्रिकल, और ये सिस्टोल प्रोसेस की तरफ जाने लगेंगे। सिस्टोल प्रोसेस की तरफ जैसे ही ये जाएंगे, ऑटोमेटिकली मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे, तो हमारा ट्राइकप्सिड वाल्व एंड बाइकप्सिड वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा, और जो मेरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा। सो जैसे ही ब्लड राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, ऑटोमेटिकली ये सिस्टोल भी होगा, क्योंकि ये दोनों तो अब डायस्टोल की प्रोसेस की तरफ चले गए, अब ये वेंट्रिकल सिस्टोल होंगे। तो जो हमारा ये नोड है दैट इज कॉल्ड एवी नोड, इट कलेक्ट्स ऑल द जनरेटेड impulses from the SA node and passed into the bundle of his. From bundle of his it passed through the fibers and start contracting the both ventricles. तो यानी both ventricles को ये contract करना स्टार्ट कर जाएंगे, यानी सिस्टोलिंग होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। Once the systole process is started, automatically tricapsid and bicapsid valves are closed and our first heart sound is generated over here. So because due to high pressure, automatically deoxygenated blood and oxygenated blood मेरी both semilunar valves में जाने लगेगा। Why? Because due to high pressure both valves are open and blood from right ventricle, that is deoxygenated blood, moves towards the left semilunar valve and then to the pulmonary artery. पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में चला जाएगा, लंग्स में ये ऑक्सीजनेटेड होगा, वहाँ से लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स इसको कलेक्ट करके लेफ्ट ऑरिकल के अंदर दे देंगी। Now from this left auricle the oxygenated blood entered into the left ventricle, and from this left ventricle the blood enters into the right semilunar valve and then to the aorta. So this is the way of the moving of blood oxygenated and deoxygenated. Now what will happen? सिस्टोल हो गया, यहाँ पे प्रेशर भी इंक्रीज हो गया, दोनों सेमिलुनार वेल्व भी ओपन हो गए, अब इनको क्लोज्ड भी तो होना है। सो बोथ वेंट्रिकल्स आर मूव्ड टूवर्ड्स द डायस्टोलिंग। वंस द डायस्टोलिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड, ऑटोमेटिकली बोथ सेमिलुनार वेल्व्स आर क्लोज्ड and in this time our second heart sound is produced and that is called D. तो यहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होगा? जब फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होगा जब ट्राइकप्सिड वाल्व एंड बाइकप्सिड वाल्व्स आर क्लोज्ड at during the systoling process of both ventricle and diastoling process of both ventricle, both semilunar valves are closed and the second heart sound is produced and that is called D. So this is all about the circulation of blood. यहाँ पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर और बनाए हैं जो इजीली आपको समझा सकते हैं। ये देखिए, ये एट्रियल एक्साइटेशन है। इट मीन्स कि जैसे ही ब्लड राइट एट्रियम में आया, ऑटोमेटिकली ऐसे नोड इम्पल्स जनरेट कर देगा, हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर के कारण ये सिस्टोल हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये मैंने सिस्टोल ग्रीन पार्ट से मेजर किया है। उसके बाद जैसे ही सिस्टोल होगा, ट्राइकप्सिड बाइकप्सिड वाल्व ओपन हो जाएंगे और मेरा ब्लड वेंट्रिकल्स के अंदर एंटर हो जाएगा और जो मेरे ऑरिकल्स हैं वो डायस्टोलिंग प्रोसेस की तरफ चले जाएंगे। ये डायस्टोल होंगे और ये बोथ वेंट्रिकल सिस्टोल हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, ये मैंने ग्रीन पार्ट से बोथ वेंट्रिकल को सिस्टोल प्रोसेस में मेंशन किया है और एरोज ने इनको हाई प्रेशर मेंशन किया है। तो जैसे ही हाई प्रेशर होगा, ऑटोमेटिकली सेमिलुनार वेल्व्स ओपन हो जाएंगे और सेमिलुनार वेल्व्स के थ्रू मेरा जो ब्लड है डीऑक्सीजनेटेड अनऑक्सीजनेटेड
क्रॉस वे में दोनों सेमिलुलर वेल्स में एंटर होके एक लंग्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड चला जाएगा और दूसरा मेरा सेमिलुलर वेल्व के थ्रू अओर्टा में चला जाएगा और लंग से ऑक्सीजनेटेड होके लेफ्ट ऑरिकल के अंदर आ जाएगा. सो दिस इज़ द वे ऑफ वेंट्रिकुलर एक्साइटेशन एंड दिस इज़ द वे ऑफ एट्रियल एक्साइटेशन. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो. ये बेसिकली मैंने 10th क्लास के हिसाब से चुना है एंड आई हैव नॉट मेंशन मेनी ऑफ द पार्ट ऑफ द हार्ट ओवर हियर बिकॉज इन 10th क्लास अ शॉर्ट एंड स्वीट डबल सर्कुलेशन process is over there. So in my next part definitely I will explain whole part of the heart for the higher classes. So आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, सो प्लीज़ इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. और मेरे चैनल में ही मैं अपने ब्लॉगर की लिंक भी दे रही हूँ, तो आप वहाँ से मेरे नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं. सो गुड डे टू ऑल.